मेरा मोबाइल था। साउथ सर का आया तो मैं बंद करने के चक्कर में उठाया, फिर से बंद। कौन सा? साउथ सर वाली नगर। Today I will discuss about the operation philosophy of the modern solar system. Because of that, tomorrow we will having a small plant visit in the first half. So we will just discuss about the modern spoilers which are in our Belaski plant. This modern spoilers, modernization and the expansion project of the 7MT. In this project, we have the 3 boilers. Let us we will discuss about that. Oh. In our presentation module, I will discuss about the power and blowing station, introduction of the Modix boilers, and the basic systems into the boiler operations. We will talk about the boiler startup and the shutdown procedure, then operation practices in the gas line system, and finally master fuel trips and the critical parameters about the boilers. This is our power and blowing station which was commissioned in 4th June of 1959. We are providing the cold blast, critical load and the process steam for the major mills and the shops of the PBS, power and blowing station, Bhilai Steel Plant. In our premises, in our power and blowing station, we are having the 12 steam turbo blowers, 5 turbo generators, in which 25 megawatt of steam turbo generator, 9 number of the gas and cold fire boilers, waste heat recovery boiler, 4 number of waste heat recovery boilers into the CDCP battery 11 area, 3 number of units into the DM plant and 1 water chemical treatment plant. Apart from that, there are 2 cooling towers and 1 back pressure turbo generator of 4 megawatt and top recovery turbine 14 megawatt in BF at premises. This is our layout of our power and blowing station, in which we are having all the 9 boilers which are connected in a common header of the feed water line. Similarly, with the main steam header also connected, all the boilers connected into the main steam header common. This can be isolated easily by their individual walls, and there are all turbo generators and the turbo blowers are connected with the same main steam headers. There is a water chemical treatment plant, or we can say the soft water plant, and there is a DM plant of 3 into 225 meter cube per hour. And we will see there are 10 cell cooling tower systems, there is a CDCP boilers and the TRT. Now we will discuss about the boilers into the PBS. There are 3 boilers in Modex unit, where boilers 7, 8 and 9. These are the vertical water tube boilers, natural circulation, and the gas fired boilers. These are the rated capacity of the 150 TPH, and the pressure is around to be the 39 kg per centimeter square. Now we will discuss about the boiler systems. We have distributed the boiler into the total 8 number of the boiler systems, in which there is a air and flue gas system, in which 2 F defense and the 2 I defense. There is a main about the water and the steam system, in which the water coming from the BFPs, there are 4 BFPs, out of which the 2 BFPs are running and 2 BFPs are in standby condition. This main steam line is directly connected to the header of the PBS headers. Then we are having the gas fuel system, in which you are looking at a U connection, that is a U seal, or we say that this is also a gas line where the isolation system is provided by this U seal. Later on we will discuss about this U seal. It is a tangential fire boiler, in which there are 6 different elevations, in which on the 3rd elevation the coke oven gas is injected onto the 3rd elevation, and on to the 2nd, 4th and the 6th elevation there is a BF gas oblique BOF gas, or we say this is a mixture of the BF gas and the BOF gas, that is injected into the 2nd, 4th and the 6th elevation. There is a LDO system which is injected at the elevation number 1, and at the 5th elevation there is a PCM system, pitch creosote mixture. This is in-house fuel which is a byproduct of the coke oven area.
Then there is a PCM tracing streamline system which is used for heating the PCM, because the PCM gets solidified at the lower temperature. And there is a gas purging system. Later on we will discuss about the gas purging system. This gas purging system is provided for the coke oven gas and the BF gas. And there is a HP dosing system, high pressure dosing system, directly connected to the boiler drums. Now there is a combustion combination which are available into our boilers. There are 7 different combinations, the BF gas, the BOF gas, and BF gas plus BOF gas, and the 3 LDO, COG and PCM. These are the LDO and the COG gas. These are used for the initial firing. In our Modex boilers, we are using CO gas for initial firing, and there is also available combination of the BF, BOF gas and COG gas. Now these are the major activities used for the boiler startup, in which open drum vent, we will open the drum vents, open the superheater drains, recirculation valves, then we will fill the drums at the lower levels, then we start the Skinner air fan, one ID fan, both FD fans and the second ID fan. Similarly, we start the furnace purging. Then this coke oven gas will be purged, and this USIL will be drained, and we will fire the boiler from the CO gas line, CO gas. Once it reach to the 2 kg pressure of the drum, we close all the drum side vents and BF gas line purging is started. Once we get the 10 kg of pressure of the drum, we open the main steam valve, because after this main steam valve there are 2 different valves, isolation valves are available for the taking the range boiler for the main steam header. And then we take the according to the OEM, we require the furnace temperature should be 650 degrees Celsius. After that, we can use the BF gas inside the boiler. Once the temperature reach to the 430 degree plus, then we will wait for the pressure of the boiler that should be the slightly more than the header pressure, and then we will take into the range, boiler taken into the range, and all the charge the attemperators, close the superheater drains and the close the recirculation valves. Now we will talk about the USIL and the seal pot system. There are 2 different systems. You are finding that this is a USIL at the left side, and to the right side there is a seal pot. In this USIL, as I already told you, it's an isolation system. In this isolation system, the pink color of line, that is a gas line. This gas line, there is a direction of the gas line from the yellow arrows. अगर मैं आपको इसको प्रॉपरली बताऊं तो इसमें जो जस्ट बिफोर में जो आपको वॉल बिफोर में दिखाई दे रहा है वो एक यूसिल मेकअप वाटर लाइन सिस्टम है, और उसके बाद में जो दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, दैट इज अ यूसिल ओवरफ्लो लाइन सिस्टम है. इसके थ्रू जब भी हमको, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो यूसिल है, इस यूसिल को फिल करने के लिए और इस यूसिल को ब्रेक करने के लिए, इस यूसिल को ड्रेन करने के लिए, ये 3 वॉल्स का इंपॉर्टेंस है. इसके बाद में जो येलो लाइन देख रहे हैं आप, इस येलो लाइन का जो लेवल है, उस लेवल से जो आपका ये जो सील पॉट का लेवल है, ये हमेशा नीचे होगा. और इसमें जो सील पॉट है, सील पॉट के अंदर में भी एक ओवरफ्लो लाइन दी हुई है. मेनली जो यूसिल है वो आइसोलेशन पर्पस के लिए है. जैसा कि आप स्टीम लाइंस में देखते हैं कि एक ड्रेन दिया होता है और ड्रेन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन ऐसा सिस्टम हम गैस लाइन में नहीं दे सकते हैं. रीज़न उसके पीछे ये होता है कि अगर ये लाइन हम अगर सीधे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में देंगे तो होगा ये कि ये जो गैस है वो आपकी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हमने एक लाइन को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया सील पॉट से. इस सील पॉट के अंदर में हमेशा पानी भरा हुआ होता है. ये पानी भरा होने से ये है कि जो गैस लाइन का जो प्रेशर है, उस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर वाटर कॉलम जो है वो हमारा सील पॉट में बना रहता है. अब हम एक बार इसका यूसिल का फिलिंग प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं. जैसा कि आप इसमें ये यूसिल देख रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, इसका आपको जो ड्रेन है उसको आप बंद कर देंगे. उसके बाद में आप वाटर लाइन को ओपन करेंगे और ओवरफ्लो लाइन से आपका पानी आना शुरू हो जाएगा. जब ये एक बार कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर, उसके बाद में हम जो एक और चीज़ को ध्यान रखना है कि जो आपका गैस होता है वो डायरेक्टली कभी भी इस सिस्टम के अंदर में एयर के साथ में मिक्स नहीं होना चाहिए. इसीलिए हम लोगों ने एक स्टीम सिस्टम बीच में इंट्रोड्यूस किया होता है, ताकि गैस जो है, गैस को स्टीम के द्वारा बाहर निकाल लिया जाए, और उसके बाद में जो बचा, जब गैस स्टीम कंडेंसेट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसमें एयर इनग्रेस हो जाएगा, और वो हमारे लिए हैजार्डस नहीं है. दिस इज ओवरऑल द यूसिल सिस्टम फिलिंग प्रोसीजर. अब इसके बाद में हम एक बार ड्रेन प्रोसीजर देख लेते हैं. इसके अंदर में ऑलरेडी जैसा आपने पहले देखा है कि इसके अंदर में पानी भरा हुआ है. अब हम इसके ब्लैंक को रिमूव कर देंगे नीचे, जैसा आप ड्रेन में देख रहे हैं. उसके बाद में हम इसका जो ड्रेन है उस ड्रेन वॉल को ओपन कर देंगे.
और साथ में जो गैस लाइन है, गैस लाइन के अंदर में जो पर्जिंग सिस्टम है वो ओपन स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा कंटिन्यूसली पर्ज होता रहेगा और हमारा जो गैस है, जो हमारा स्टीम है वो निकलता रहेगा। अब हमारा जैसे ही ड्रेन हमने ओपन किया तो ये पूरा यूसिल पूरा खाली हो जाएगा। एक बार ये यूसिल पूरा खाली हो गया तो ये जो गैस लाइन है, ये जो गैस है, ये गैस आपकी स्टीम के साथ में मिक्स होकर एटमॉस्फेयर में निकलने लगेगी। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये गैस और स्टीम दोनों एक साथ में निकलने लग रही हैं, तो हम इसको हम वॉल्स को, स्टीम लाइन को बंद कर देंगे और इसके वॉल को भी हम बंद कर देंगे और हमारा जो आफ्टर वॉल है उसको हम ओपन कर देंगे। इस तरह से आपका यूसिल जो है वो कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा, गैस से फिल हो जाएगा। अब हम एक बार पर्जिंग और फायरिंग मेथड को देख लेते हैं। इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि ये यूसिल है, उसके बाद में एमओवी से, ट्रिप वॉल से और फ्लो कंट्रोल वॉल से। इसमें हम सबसे पहले तो ब्लैंक्स को रिमूव करेंगे और हमारे जो गैस लाइन है उसके अंदर में सारे वॉल्स को धीरे धीरे ओपन करेंगे और जो स्टीम लाइन से उनको ओपन करना शुरू करेंगे और साथ में जो हमारे वेंट से उनको ओपन करेंगे, ताकि इस लाइन के अंदर में जो अभी तक एयर है वो एयर की जगह पे अब वो स्टीम जाना शुरू हो जाएगी। ये जो स्टीम जाना शुरू हो जाएगी तो होगा ये कि इसके अंदर में पूरा का पूरा आपका स्टीम फिल हो जाएगा। ये पर्जिंग हमारी, इसको कहते हैं हम पर्जिंग का स्टार्ट होना। उसके बाद में हम यूसिल को ब्लैंक करेंगे। यूसिल को ब्लैंक करने के बाद में यूसिल को ड्रेन करेंगे। ड्रेन करने के बाद में ये गैस लाइन, जो गैस है, ये धीरे धीरे करके सभी सिस्टम में, पूरे सिस्टम में जाना शुरू हो जाएगी। एक एक करके हम एमओवी, ट्रिप वॉल, फ्लो कंट्रोल वॉल, इन सभी को ओपन करेंगे। जब इनको हम ओपन करते जाएंगे तो ये गैस जो है वो अब आपके पूरे सिस्टम में आने लगी है, तो हम एक एक करके इसके जो पर्जिंग वॉल्स है उनको बंद करते जाएंगे और जो वेंट्स हैं वो आपके धीरे धीरे बंद करना शुरू करेंगे, ताकि ये जो गैस है अब ये एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी और आपकी जो गैस लाइन है वो कंप्लीटली ओनली गैस से फिल हो जाएगी और इसमें जो एयर है वो आपकी कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी, जैसा कि आप पूरा सिस्टम में देख रहे हैं। ये एक बार गैस पूरी आपकी इस कॉर्नर तक आ जाती है तो हमने एक पायलट वॉल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो कि बहुत पतला सा होता है, जिससे हम इनिशियल फायरिंग करते हैं। ये एक बार पायलट वॉल को हम ओपन कर लेते तो हमारा फायरिंग चालू हो जाता है और जो जो इसमें जो मेन फायरिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा टेंजेंशियल फायरिंग सिस्टम में हमारा ये COG लाइन से फायर होता है सिस्टम। अब हम एक बार COG बर्नर्स को देख लेते हैं। इसके जो बर्नर्स हैं, हम सबसे पहले देखेंगे जो फील्ड पर है। आप राइट साइड में देख रहे हैं जो फील्ड में जैसा सिस्टम है, और लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं दैट इज अ DCS सिस्टम। इसमें हमारे जो इग्नाइटर रॉड है, इग्नाइटर रॉड, पायलट वॉल, फ्लेम स्कैनर और दो COG का मेन ट्रिप वॉल है। अब हम एक एक करके देखते हैं। जब हम इग्नाइटर रॉड एडवांस करते हैं तो हमें DCS पे कमांड आ जाता है कि हमारा इग्नाइटर रॉड एडवांस हो चुका है। उसके बाद में हम पायलट वॉल को ओपन करते हैं तो गैस गन एडवांस आता है, गैस गन एडवांस आता है और हम इस पार कमांड देते हैं। उसके बाद में हम पायलट वॉल को ओपन करते हैं। जैसे ही पायलट वॉल ओपन होता है तो हमारा गैस आना अंदर शुरू हो जाता है, इससे शुरू होती है और हमारा फ्लेम स्कैनर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद में हमारा जो मेन कोक 1 गैस का ट्रिप वॉल है वो ओपन कर दिया जाता है और इससे हमारा गैस जो है वो कंप्लीटली फायर हो जाता है और दोबारा से हम इसके इग्नाइटर रॉड को डिटेक्ट कर लेते हैं और पायलट वॉल को बंद करके हम इसके गैस गन को हम वापस ले लेते हैं। ओवरऑल सिस्टम हमारा कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। इसके बाद में हम BF गैस लाइन को चार्ज करते हैं। ऑलरेडी हमारा कोक 1 गैस लाइन तो ऑलरेडी चार्ज था। अब ये जब हमारा 650 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है बॉयलर के अंदर में, तो उसके बाद में हम अपना पर्जिंग को चालू करते हैं। जैसा हमने ऑलरेडी कोक 1 गैस सिस्टम में देखा था वैसे ही हमारा BF गैस सिस्टम में भी है। इसमें स्टीम जो है कंटिन्यूसली पूरी स्टीम लाइन को फिलअप, पूरी गैस लाइन को फिलअप कर देता है और हमारा स्टीमिंग जो है वो वेंटिंग होता रहता है। इसमें अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्टीमिंग होना शुरू हो गया है। अब हम इसके यूसिल को ब्रेक कर देते हैं और ये जो गैस है दोबारा से आपके पूरे सिस्टम में आने लगती है। एक एक करके हम फर्स्ट एमओवी को ओपन करते हैं, उसके बाद में ट्रिप वॉल को ओपन करते हैं, फिर फ्लो कंट्रोल वॉल को ओपन करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड हम देखते हैं कि हमारे जितने भी पर्जिंग वॉल्स हैं, जो पर्जिंग स्टीम वॉल्स हैं, उनको हम एक एक करके बंद करना शुरू करते हैं और वेंट्स को भी हम बंद करते हैं। एक बार ये हमारा पूरे सिस्टम में एक बार गैस आ जाएगी, ये हमने वेंट्स बंद करना शुरू कर दिए तो हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर में गैस जाना बंद हो जाएगी। ये हमने एक बार ट्रिप वॉल खोला, उसके बाद में इस ट्रिप वॉल और फ्लो कंट्रोल वॉल के बीच की लाइंस को हम एक एक करके बंद करते जाते हैं। फिर हमारा फ्लो कंट्रोल वॉल ओपन हुआ है। फ्लो कंट्रोल वॉल को अप्रॉक्सीमेटली 50% टू 90% हम ओपन करके रखते हैं इनिशियली। उसके बाद में एक एक जो ट्रिप वॉल्स हैं उनको हम ओपन करते हैं। ये हमारा पूरा सिस्टम अब गैस से फिल्ड हो चुका है। अब इसमें हमने ट्रिप वॉल को ओपन किया और हमारा पूरा कंप्लीट बॉयलर फायर्ड हो गया। दिस इज द ओवरऑल प्रोसीजर। अब हम मास्टर फ्यूल ट्रिप की एक बार बात कर लेते हैं। हमारे पास में टोटल बोथ ID फैन मास्टर फ्यूल ट्रिप में जो एक्शन होता है उसमें हमारा LD और PCM का जो वॉल्स हैं वो ट्रिप वॉल है वो बंद हो जाते हैं और BF गैस COG वॉल्स की भी कॉर्नर ट्रिप वॉल्स और MOV बंद होता है।
इसमें मास्टर फ्यूल ट्रिप में हमने आईडी फैन दोनों आईडी फैन बंद होने पर मास्टर फ्यूल ट्रिप आता है। उसके अलावा एफडी फैन दोनों एफडी फैन के बंद होने पर, इसके अलावा ड्रम लेवल हाई जिसमें 125 प्लस 125 mm पर ये ट्रिप होता है, लो लेवल में -125। इसमें ऑप्शंस हैं, मतलब ऑप्शन मीन्स ये कहा जाए कि 3 हमारे सेंसर्स हैं, 3 में से 2 सेंसर्स अगर एक्टिव हो जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर है, क्योंकि हमारे जितने सोलोनाइट वॉल्व्स हैं वो सभी इंस्ट्रूमेंट एयर पे काम करते हैं। एयर फ्लो अगर 30% से कम हो जाए उस कंडीशन में, फर्नेस प्रेशर अगर लो हो जाता है उस कंडीशन में, और फर्नेस प्रेशर हाई होता है उस कंडीशन में। दीज आर ऑल द मास्टर फ्यूल ट्रिप्स। एक बार हम क्रिटिकल पैरामीटर्स देख लेते हैं। जैसा मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कल अगर आप प्लांट में आते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे सिस्टम्स को विजिट कीजिए। ये हमारे एक क्रिटिकल पैरामीटर्स का एक हमने वहाँ पे स्क्रीन बना हुआ है, जहाँ पे हमारा ऑपरेटर कंटिन्यूसली इसको देखते हुए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जितने भी पूरा स्टीम लाइन हेडर्स हैं, ये स्टीम लाइन हेडर है, वो हेडर में सारे बॉयलर्स एक साथ कनेक्टेड है और सारी टर्बाइंस एक साथ कनेक्टेड है। तो होता ये है कि एक इंडिकेटर सिस्टम हमने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं अभी। पहले तो ये देख लीजिए कि इसमें ड्रम लेवल, स्टीम, फीड वाटर, बीएफ गैस, कोकोन गैस, इन सभी के पैरामीटर्स कंटिन्यूसली वहाँ पर मॉनिटर होते रहते हैं, दिखाई देते हैं। ये एक इंडिकेटर सिस्टम है। इस इंडिकेटर सिस्टम में अगर इंडिकेटर आपका टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका डिमांड हाई है बट हमारे बॉयलर से जो स्टीम जनरेट हो रहा है वो कम हो रहा है। और अगर ये टुवर्ड्स द राइट साइड जाता है तो हमारा डिमांड जो है वो लोअर साइड है, बट जो बॉयलर का जनरेशन हो रहा है दैट इज एट द हायर साइड। और अगर ये नियर टू द जीरो है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि बॉयलर हमारे स्टेबल कंडीशन में चल रहा है। हम लोग ये हमेशा मान के चलते हैं कि मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज जो हेडर प्रेशर होना चाहिए दैट इज अराउंड टू बी 36 to 37 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट द बॉयलर शटडाउन प्रोसीजर। हम बॉयलर के लोड को धीरे धीरे कम करते हैं, एटेम्परेटर वॉल्व्स को बंद करते हैं, पर्जिंग सिस्टम्स को चार्ज करते हैं, और हमारे बीएफ गैस ट्रिप सबसे पहले हम बीएफ गैस लाइन को बंद करते हैं। देन आफ्टर वी क्लोज द एमओवीज, ट्रिप वॉल्व्स ऑफ द सीओजीज, एमओवीज ऑफ द सीओजीज। दिस मीन्स दैट द फ्यूल्स आर कंप्लीटली बंद, मतलब पूरे जितने फ्यूल्स हैं वो टोटल बंद हो चुके हैं। इस सिचुएशन में हम एमएसवी को बंद कर देते हैं, वार्म अप वेंट्स को ओपन कर देते हैं, और हम गैस लाइन को चार्ज करते हैं। इसके साथ ही हमारे दोनों हेडर्स के वॉल, स्टीम लाइन के जो हेडर वॉल्स हैं उनको बंद कर देते हैं, और जो हमारा रिसर्कुलेशन वॉल है उसको ओपन कर दिया जाता है, हमारे सुपर हीटर ड्रेन्स को ओपन कर दिया जाता है, आईडीएफ डिफेंस को स्टॉप किया जाता है। ड्रम टेम्परेचर मोड लेस देन 100 डिग्री जब आता है उसके बाद में हमारे मैनुअल वॉल्स जो है फीड लाइन के वो बंद कर दिए जाते हैं, ड्रेन्स और वेंट्स क्लोज किए जाते हैं। ड्रम टेम्परेचर जैसे 70 के नीचे आता है उसके बाद में हम अपने मैनुअल बॉयलर के मैनुअल डोर्स को ओपन कर देते हैं। दिस इज ओवरऑल अबाउट द ऑपरेशन फिलोसॉफी ऑफ द मोडेक्स पीवीएस बॉयलर्स। थैंक यू एवरीवन। Any further